Assalamu alaikum dear students. Today my topic is the famous play of Shakespeare, Macbeth. It is chapter number 5 of 7th English, page number 30. The play opens with the three witches who intend to meet Macbeth, Thane of Glamis, Macbeth King Duncan's general, and Banquo return victorious from war and encounter the three witches on a heath. They predict that Macbeth will be the king. To Banquo they say, "Thou shalt get kings, thou shalt be none." The witches disappear before they could be questioned further. In the meantime, the king's messengers arrive. Macbeth is to receive the title and possession of Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. Upon learning that he is the new Thane of Cawdor, Macbeth begins to entertain the idea that the witch's words may prove true. Banquo observed that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as king. At Inverness, Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informs her of his encounter with the witches and their prediction of him becoming a king. Lady Macbeth is sure that the prophecy will come true, but objects to Macbeth's being full of the milk of human kindness. She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is, by killing the king. The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of assassinating the king. He shares with his wife the fear of producing further. Lady Macbeth retorts by calling him a coward. She tells him about her plan of they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with blood from the murder weapons. The murder is discovered by Macduff, Malcolm, and his younger brother Donalbain are uneasy when they learn that the only possible witnesses, the grooms, are dead. Macbeth confesses that he has killed them in rage at their crime. The two princes escape from Scotland and Macbeth assumes the crown. Macbeth now plans Banquo's murder but is displeased about his son Felicie's escape. The ghost of Banquo now haunts Macbeth. He seeks out the witches and learns that he must beware of Fifi Macduff, but he cannot be harmed by one of woman born. And that he will not be defeated until Birnam Wood shall come against him. Finally, he is granted a vision of a line of kings, and the last of them wears Banquo's face. Macbeth joins Malcolm in England, where the prince is raising an army to invade Scotland. Macbeth orders the murder of Lady Macduff and all her children. Lady Macbeth's mind gives way. She sleepwalks and speaks of unnatural deeds Macduff with the invading army approaching. Macbeth fortifies
Dunsinane Castle near Birnam Wood. It is there that Lady Macbeth dies, while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Birnam Wood as camouflage for their assault on the castle. Macbeth's forces are defeated, but he, remembering the witch's words, believes himself invulnerable. He is killed by Macduff, the opponent who was not of woman born, but was from his mother's womb, untimely brought out. Malcolm succeeds to the throne. Now we will give the Urdu summary of this play, of this drama Macbeth. That is, here are the characters, that is Macbeth, Banquo, King Duncan's general, Lady Macbeth, Macduff, Malcolm, Dunalban, Birnam, and last one is Birnam Wood. Here is the whole story is around the Macbeth. That is the top character of this play. Macbeth was actually the army chief of the King Duncans, and Macbeth and Banquo return victorious from war and encounter the three witches on a heath. यानी जो ये मैकबेथ है, ये इसमें एक कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। मैकबेथ और बनकियो जो आर्मी के दो जनरल होते हैं, तो वो उस नॉर्वे जंग से वापस आने के बाद एक जंगल में तीन विचों से मिलते हैं, यानी तीन चुड़ैलों से। उनके रास्ते में तीन चुड़ैले होते हैं जो उनसे बोलती हैं कि जो मैकबेथ है उनकी प्रेडिक्शन करते हैं, यानी आप क्या बनने जा रहे हैं, और बनके को भी बोलते हैं कि आप क्या बनने जा रहे हैं। तो मैकबेथ को उन्होंने तीन बातें कही इन चुड़ैलों ने। उनमें से जो पहली बात है कि आप और भी जनरल बनोगे और आप किंग बनोगे, और तीसरी बात जो है कि आपके बाद बनक्यो का बेटा बादशाह बनेगा। यानी बनक्यो को उन्होंने बोला कि आप बादशाह नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपका बेटा बादशाह मैकबेथ के बाद बादशाह बन सकता है। तो जो ये बातें विचेस ने इस मैकबेथ और बनक्यो को रास्ते में बोली थी, तो जब वो वापस आ गए तो इस जंग की कामयाबी पर किंग डनकैन ने एक पार्टी का इंतज़ाम किया था। तो उसमें इस खुशी के मौके पर बनाई थी, जो कि उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी उस जंग में जो नॉर्वे के खिलाफ थी। स्कॉटलैंड और नॉर्वे के दरमियान एक जंग था। तो इसी में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, इसके एजाज़ में ये पार्टी थी। तो जब ये प्रेडिक्शन जो विचेस ने की थी, जो इन चुड़ैलों ने मैकबेथ और बनक्यो को पहले ही बोली थी रास्ते में, तो ये बात मैकबेथ के जहन में घूम रही थी। तो उसी दौरान जो किंग डनकैन है, उसने मैकबेथ के महल में, मैकबेथ के किले में एक रात गुजारने का प्रोग्राम बना लिया। तो जब वो वहाँ चले गए तो उसी दौरान उसकी बीवी लेडी मैकबेथ जो थी, उसको पता चला कि चुड़ैलों ने मेरे हस्बैंड को एक प्रेडिक्शन की है, कि पेशन गोई की है कि आप बादशाह बनोगे। तो उसके जहन में भी ये बात उभरने लगी। तो उसने अपने हस्बैंड से मनवाने की कोशिश की कि आज एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बादशाह हमारे घर दावत पर आए हैं, तो आप आराम से बादशाह बन सकते हो, किंग बन सकते हो। आप डनकैन किंग को
कत्ल कर लीजिए तो आप बादशाह बनोगे। तो जो लेडी मैकबेथ थी, इसने बहुत हौसला दिया अपने हस्बैंड को, मैकबेथ को। तो चूँकि मैकबेथ जो था वो ये नहीं चाहता था कि मैं बादशाह को कत्ल करूं, लेकिन जब उसकी बीवी ने उससे हिम्मत दी, उससे हौसला दिया कि नहीं, ये एक अच्छा मौका है, आपके पास जो शिकार है वो खुद ही आ गया है, तो हम चलें एक ट्रिक खेलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम बना लिया, एक प्लान बना लिया कि हम कैसे बादशाह को कत्ल करेंगे। तो उसी रात वो एक खंजर लेके उसके कमरे में चली गई, और जो उसके साथ वो जो दो उसके बॉडीगार्ड थे, उसको उन दोनों को उन्होंने शराब पिलाया, तो जिससे वो बेहोश पड़ गए, तो और बादशाह को कत्ल करने में कामयाब हो गए। तो जब ये वापस आ गए तो सुबह हुई, क्योंकि खंजर उनके पास थी, तो उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए ये कहा कि हम कैसे आप इस कत्ल को किस पर डालेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो ये ग्रूम्स इसके साथ थे, जो इसके बॉडीगार्ड्स थे, ये इनकी नेग्लिजेंस से हो गया है कि ये सोए हुए थे, तो जिस तरह इसी दौरान बादशाह का कत्ल हो गया है। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जो एक कत्ल हुआ है ये हम इनके ग्रूम्स जो इसके साथ ये दो बॉडीगार्ड थे उनके ऊपर चढ़ाएंगे। तो इसी दौरान जो मैकडफ था, मैकडफ को शक हुआ कि जो मैकबेथ है ये कत्ल मैकबेथ ने किया है। तो जो ही बादशाह के किंग के बेटों को ये पता चला, मेलकम और उसके यंगर ब्रदर डोनाल्ड बैन को, कि जो हमारे वो ग्रूम्स उसके पापा के मतलब उसके किंग के साथ थे, उनके बाप के साथ थे, तो वो कत्ल हो गए हैं। तो उनको डर लगा कि अब हम भी कत्ल हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, तो और वो भाग गए, वो इंग्लैंड चले गए। तो अब मैकबेथ के जहन में एक सवाल शुरू हुआ कि जो ये बनकियो है, बनकियो का बेटा मेरे बाद बादशाह बन जाएगा, क्या मैं इन दो को भी निपटा लूँ। तो उसने प्लान बना लिया, इनको दावत पर लाया, तो अपने आदमियों को तैयार किया कि आप इन दोनों को कत्ल कर लो। तो जब वो रास्ते में उन्हें कत्ल करने के लिए गए, तो उस दौरान सिर्फ बनकियो को ही मारा गया। तो जो उसका बेटा था वो चला गया, वो बच गया उस प्लान में। तो अब ये मसला बन गया मैकबेथ के लिए कि अब उसके लिए परेशानी बन गई। उन्होंने अपने उन आदमियों से कहा कि आपको जो मारना था तो वो भाग गया, तो आपने उसको मारा जो नहीं मारना था। तो अब वो फिर से चुड़ैलों के पास चला गया कि आप मुझे बताइए। चुड़ैलों को बताने लगा कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चुड़ैलों ने फिर से 3 ये प्रेडिक्शंस की, प्रोफेसी की, जिसमें पहला उन्होंने बोला कि आपको एक खतरा है जो मैकडफ से है, मैकडफ आपका जानी दुश्मन है। और जो दूसरा खतरा है कि वो बच्चा आपको मार सकता है जो वोमेन से बॉर्न नहीं हुआ हो, यानी औरत जिसको माँ ने नहीं जना हो। तो तीसरी बात कही कि जो ये जंगल है इसमें जो बिरनाम वुड है, इस जो जब ये दरख्त आपके किले के नज़दीक आ जाएंगे तो उस वक़्त आपको मरने का ख़तरा है। तो इस तरह से मैकबेथ को इत्मीनान हुआ कि जो 2 चीज़ हैं वो मुझे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि दरख्त तो चल नहीं सकते हैं, तो दरख्त मेरे किले के पास कैसे आ सकते हैं। दूसरा ये कि वोमन बॉर्न, यानी जिस औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया है वो है ही नहीं कोई। तो अब उसको इत्मीनान हुआ, अब मेरा जो एक ही दुश्मन है वो मैकडफ है। तो मैकडफ चला गया वहाँ इंग्लैंड, और उसने वहाँ
बात की मलकाओं के साथ, तो वहाँ फ़ौज तैयार की, तो वो वहाँ से अब मैकबेथ के ऊपर चढ़ाई करने लगे, उसके किले के ऊपर, यानी उसको मारने के लिए उन्होंने एक साजिश रचाई। तो जब वो इसके ऊपर चढ़ाई करने लगे तो उन्होंने बिरनाम वुड का इस्तेमाल किया, अपने इर्द गिर्द इसके पत्ते लगाए, तो आगे आगे चलने था कि इसको शक न हो जाए कि मुझे कत्ल करने वाले फौज आ रही है। तो इसी दौरान जब मैकडफ और मैलकॉम ने ये प्रोग्राम बनाने, तो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई शुरू की। तो उन्होंने उस जंगल का इस्तेमाल किया, उस जंगल में आगे वहाँ बिरनाम वुड का इस्तेमाल भी किया, तो आगे आगे उसके किले के नज़दीक पहुँच गए। तो जब वो उस किले के अंदर चले गए तो उसने कहा कि हाँ, ये तो सही बात है कि मैकडफ ने कहा कि मैं वोमेन बॉर्न नहीं हूँ, यानी मुझे माँ ने नहीं जिना है, यानी उसके पेट से मुझे निकाला गया है फाड़ करके। तो यानी उसकी पेट को फाड़ कर, यानी ऑपरेशन करके मैकडफ को निकाला गया था। तो मैकडफ ने कहा मैं ही इसको कत्ल कर सकता हूँ, तो उसको हिम्मत मिल गई। तो इसी दौरान मैकडफ और जो ये दूसरा था मैलकॉम, तो उन्होंने अल्टीमेटली वहाँ आकर उस पर हमला बोला। तो इसी दौरान उसकी जो मतलब लेडी मैकबेथ जो थी, तो वो भी एक बीमारी की शिकार हुई थी। तो उसको स्लीप वाकस, यानी उसको वो भूत आ रहे थे उसके जो बन कियो था उसके कत्ल का, और उस बादशाह के, जो ये बादशाह इसमें मारा गया जिसका नाम था डनकैन, किंग डनकैन, तो उसके भूत आ रहे थे। तो उसको ये बीमारी लगी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसी बीमारी से मर गई। तो उसको ये बीमारी लगी थी स्लीप वाक्स, तो इससे भी मैकबेथ को परेशानी हुई थी। तो आखिर में मैकडफ कामयाब हो गया, उसने इसको कत्ल कर दिया और मैकबेथ को मार दिया। तो इस तरह से ये कहानी जो थी, इसकी समरी मैंने उर्दू में भी बोली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा जो ये प्ले लिखा था। तो इसमें एक्चुअली देखना है कि जो पावर है, कि इंसान जो है जब वो पावर में आता है तो वो क्या क्या कर जाता है। वो किसी को कत्ल करता है, किसी को जेल डालता है। तो इसी तरह से वो अपने पावर को एंजॉय करता है, क्योंकि जब किसी इंसान के पास पावर आता है तो उसकी अक्ल जो है वो फिर वैशी बन जाती है। तो उसका वो तरीका वो भी वैश्याना हो जाता है। तो इस तरह से मैकबेथ भी इसी तरह वैशी बन गया था। उसने अपने चचेरे भाई को, यानी किंग डनकैन को मार डाला था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो ये प्ले था समझ आ गया होगा। बाकी वस्सलाम।